आपको स्क्रीन पे सब लोगों को चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी बुक्स तो ओपन कर ही रखी हैं। बुक्स मैंने ओपन सिर्फ इसलिए करवाई हैं जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपने आज पढ़ा है। ठीक है, बाकी आपको अभी पर्टिकुलरली लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे जो आपके विजिबल हो रहा है उसको देखते जाना है और मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको समझते जाना है। जैसे ही आपकी क्लास ओवर होगी उसके बाद में, या आज आपकी जो स्कूल ओवर होगी उसके बाद में, आप अपनी बुक में से सेम टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। कंज्यूमर का मीनिंग हम सब जानते हैं, दैट इज अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट फॉर द फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। लेकिन बात यह है कि एक बार एग्जामिनेशन में व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्वेश्चन आया था, और जिसने ये डेफिनेशन लिखी, ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, और जिसने ये डेफिनेशन लिखी, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट फॉर द फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसको हमने पूरे 0 मार्क्स दिए। अब आप कहेंगे कि हमने डेफिनेशन तो बिल्कुल करेक्ट लिखी, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले? मार्क्स इसलिए नहीं मिले बिकॉज उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, what do you mean by consumer as per Consumer Protection Act 1986? Consumer Protection Act is a law enacted in 1986 and it comprises of 2-paragraph definition of a consumer. So that question was expecting you to present the definition presented in that particular law, in that particular act. तो आपने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो वहां पे प्रेजेंट कर दी, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट फॉर अ फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उस डेफिनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कंज्यूमर, व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये डेफिनेशन आपको मिलेगी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, आपको अपनी रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेगी। कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप लेके बैठे हैं, दैट इन दैट आल्सो यू विल वोंट गेट दैट डेफिनेशन। This definition you will get only in NCERT book. That is a 2-paragraph definition. However, we will discuss that in the class also. Before that, let us start understanding the meaning of protecting a consumer or consumer protection. Protecting consumers from unfair trade practices. Unfair trade practices का meaning आप लोग सब समझते हैं, that is कोई भी ऐसी activity जिससे कि consumer का exploitation होता है, कोई भी ऐसी trade practices which results in exploitation of the consumer. It may include providing a bad quality product or weighing less, or it can be providing adulterated goods or any kind of that unfair trade practices which will exploit the consumer. So protecting consumers from unfair trade practices adopted by the producers and sellers of goods and services is termed as consumer protection. So what do we mean by consumer protection? Consumer protection means protecting the consumers. From what you are protecting the consumers? We are protecting the consumers from unfair trade practices. आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है, आई होप आप लोग उसको पढ़ पा रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं। What I have just explained here, that is consumer protection means protecting the consumer. Protecting the consumer from what? Protecting the consumers from unfair trade practices. Unfair trade practices of whom? Unfair trade practices of the producers as well as the sellers of goods and services. I hope consumer protection का meaning आप लोगों को समझ में आया होगा। Further, it not only includes educating consumers about their rights and responsibilities. बहुत important sentence लिखा है। इस sentence का meaning यह है that in the consumer protection we have to study this topic. What topic? We have to study the topic of consumer rights and responsibilities. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो term आया इसका meaning यह है that in this chapter or in this you can say consumer protection topic, we have to study the topic of consumer rights and responsibilities. It not only includes educating consumers about their rights and responsibilities, but also helps in getting their grievances redressed. सबसे पहली बात, एक पर्सन को ये बताया जाए that being a consumer उसके पास में क्या क्या rights available हैं। उसके बाद में उसे ये बताया जाए being a consumer आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं।
It is just like similar to being a fundamental rights and fundamental duties as provided by the Constitution of India to the every citizen of its country. And similarly, the Consumer Protection Act has provided with certain of the rights and responsibilities to each and every of its consumer. So सबसे पहले तो कंज्यूमर को ये बताया जाए कि आपके राइट्स क्या हैं और क्या क्या ड्यूटीज आपको फुलफिल करनी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी है. एंड स्टिल आफ्टर दैट इफ अ कंज्यूमर गॉट एक्सप्लॉइटेड, if his rights got violated, if his rights got infringed, in that situation how he can be redressed. So that is also we have to study in this one, that is the grievances, their grievances are to be redressed. That also we need to study in this chapter, how the exploited consumer can be redressed. Redressed का meaning आप समझते होंगे, that is वो जो भी उसका नुकसान हुआ है उसको reimburse कर देना, that is called redressed. Generally consumers are exploited by adulteration, poor quality, etc. वो examples हम काफी सारी जानते हैं already. Let us continue with the importance of consumer protection. Any questions, any doubts to anybody till here? No, sir. No, sir. No, sir. So let us continue with the importance of consumer protection. अच्छा, अभी तो किसी को कोई वो जिसको प्रॉब्लम रहती थी सर है ना, आवाज नहीं आ रही है और है ना स्क्रीन नहीं दिख रही है XYZ, वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अभी किसी को? No, sir. Importance of No. consumer protection. No, sir. Now, importance of consumer protection can be understood, can be studied from 2 points of view. That is from the consumer's point of view as well as from the producer's point of view. It can be called as the producer's point of view. It can be called as the the businessman's point of view. So one and the same thing. So let us start with the, first of all, for the consumer's point of view, why do we undertake the consumer protection activities? क्या जरूरत है, हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? तो सबसे पहला रीजन है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज majority of the consumers are ignorant and unaware about their rights, and they are got exploited in some of the other way by various producers and businessmen. तो सबसे पहली जरूरत इंपॉर्टेंस को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड नीड, सब तीनों में एक ही आंसर हमें लिखना होता है. तो सबसे पहली बात ये कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, नीड क्यों है और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है. इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि उसकी नीड है. तो क्यों उसकी नीड है? बिकॉज जो हमारा कंज्यूमर है वो इग्नोरेंट है. तो जो इग्नोरेंट कंज्यूमर है उसको हमें नॉलेज देनी होगी. किस बात की नॉलेज? दैट व्हाट आर हिज राइट्स, व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, what are the redressal agencies available to him in the situation of exploitation. तो वो हमें उसे बताना होगा. Second point of importance for consumer protection for a consumer is unorganized consumers. अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि किसी एक के साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो बेचारा खुद ही दुखी होकर बैठ जाता है, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आता. The consumers are not organized. The consumers are not in a group. Each and every consumer is an individual and is unorganized. किसी के साथ में कोई भी, सपोज कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया और उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से उसको कुछ नुकसान हो गया, ठीक है. अब किसी वो फ्रेंड को भी बोलेगा या किसी XYZ को बोलेगा, सब ये बोलेंगे अब ठीक है हम क्या करें. Nobody will come to help him. Nobody will think that आज एक कंज्यूमर के साथ में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, tomorrow it will be us. So that is the second problem, that is unorganized consumers are there. So we need to organize them. We need to bring them into a group. And the third point of importance of consumer protection for the consumers is widespread exploitation of consumers. So सब obvious बात है कि consumer को protect करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनका exploitation हो रहा है. अगर exploitation ही नहीं होगा तो consumer protection की भी जरूरत नहीं होती. Protection की जरूरत इसलिए क्योंकि उनका exploitation हो रहा है. ठीक है. So these were the 3 points of importance of consumer protection. These were the 3 points of importance of consumer protection for the consumer. Okay, let us move further. Importance of consumer protection from the point of view of business. Now we do have traditional approach, we do have modern approach. Okay, क्या है हमारी traditional approach? सबसे पहले जरा उसी को देख लेते हैं. So we do have the traditional approach, that is caveat emptor. ये थोड़ा अजीब सा वर्ड आपको लग रहा होगा, caveat emptor. This is a Greek word
and have been taken into English. In English, it has meaning let the buyer beware. ट्रेडिशनल अप्रोच वाज कैवेट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बी वेयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट में जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करने की। आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उस प्रोडक्ट को सोच के समझ के खरीदें। अगर आपको किसी तरह का कहीं कोई लॉस हो जाता है, किसी तरह का आपके साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपने खुद अपनी इच्छा से पसंद करके खरीदा है, nobody will help you. But the modern approach these days is that is caveat venditor, and this caveat venditor mean let the seller beware. Now the consumer has become the kingpin of the market, and now it is the responsibility of the seller, it is the responsibility of the producer to make the buyer aware of the product, about its quality, about its features, about its uses, about its ingredients, about its range of variety and everything. तो पहले जिम्मेदारी किसकी थी? बायर की, कंज्यूमर की। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी बन गई है? सेलर की। पहले कॉन्सेप्ट क्या था? कैवेट एम्प्टर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कैवेट वेंडिएटर। आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। Let us move further. In long term business interest, तो अगर हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक है दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस, कि क्या बिजनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ यूजफुल है? ऑब्वियसली यस। इन व्हाट मैनर? बिकॉज इट इज fruitful for the long term business interest. It is in the interest of the business in the long term. कोई भी ऐसा बिजनेस जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है, कंज्यूमर के राइट्स का ध्यान रखता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है, सो लॉन्ग रन में उसका फ्यूचर, उस बिजनेस का फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट ही होना है। सो प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड untrade fair practices will be in the long term interest of the business. यानी एक तरफ बिजनेसमैन इंटरेस्ट किसके प्रोटेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर्स के, लेकिन indirectly in the long run it is protecting his own interest, it is serving to his own interest. आज आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, लॉन्ग रन में आपका बिजनेस को बेनिफिट होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस अबाउट द consumer protection for the business. Let us move further. That is what is the second point of importance? Let us study with that. बीच में किसी को भी कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है रिवीलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर whom? फॉर द बिजनेस। दैट इज इट इज इन द मॉरल जस्टिफिकेशन. It is in the moral justification to fulfill the responsibilities towards the society and towards the consumer of every businessman and of every producer. It is a moral justification. कोई नहीं भी कहे तो हमें पता है कि हमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी। बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड बीइंग अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कोई नहीं भी कहेगा, अगर लॉ में ऐसा नहीं भी लिखा तो भी हमें अपने मन से तो पता होता है अडल्ट्रेशन इज गुड, इज बैड. Selling a product in weighing less quantity is bad. Misleading advertisements are bad. Selling unsafe products is bad. ये चीजें हमें मॉरली तो खुद ही पता होती है मन में कि क्या सही है और क्या गलत है. So that is also one of the point, that is it is against the moral justification. आपके मन के अगेंस्ट होती है ये बात. The third point of importance for consumer protection for the businessman is business uses resources of the society, from where business gets its factors of production. There are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. And all these factors of production, all the resources that a producer needs, all the resources that a manufacturer, a businessman needs for its business, from where these resources are acquired? The resources are acquired from the society only.
अब जिस सोसाइटी से आपको उन रिसोर्सेज को एक्वायर करना है, उसी सोसाइटी को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, कैन यू एक्सपेक्ट सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस इन दैट सोसाइटी? एब्सोल्युटली नॉट। आप जिस सोसाइटी से रिसोर्सेज चाहते हैं, उसी सोसाइटी को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, वन डे द सोसाइटी विल बॉयकॉट यू एंड योर बिजनेस। So again, protection of consumer is in the interest of the business, as business has to acquire all the resources or factors of production from the society only. So it is again its moral responsibility to take care of the society. The fourth point of importance of consumer protection for consumer protection for business is social responsibility. Social responsibility, if you remember, we studied this topic in class 11th, the social responsibilities of business and business ethics. This topic was there in class 11th, and in that we studied that these days fulfilling the social responsibility has been added to one of the management topic in BBA, MBA, and all the management studies. Fulfilling social responsibilities is taught, as well as in all the big business houses, in all the corporate houses. There is a department known as CSR, that is having a full form of corporate social responsibility department. Why it has been established? Obviously to take care of the society, to fulfill the responsibility towards the society. ठीक है, तो बात ये आती है कि इस पॉइंट्स में हमें समझना क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना क्या जरूरी है कि हर बिजनेसमैन के लिए? ऑब्वियसली देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, दैट इज ओनर, वर्कर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, एटसेट्रा, एंड वी नीड टू फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर. And the fifth point of importance of consumer protection towards business is government intervention. अगर आप चाहते हो, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज टच ना करें, आपके बिजनेस में कोई हर्डल क्रिएट ना करें, आपके बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस ना करें, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जाए, अगर आप ये चाहते हो तो आप वॉलंटरी अपने वॉलंटरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दीजिए. क्योंकि अगर आप कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैव टू इंटरवेन एंड look after in your unfair trade practice and take action against your business. So this is also one of the points कि अगर हम चाहते हैं avoid करना government intervention in our business, तो फिर हमें consumer protection, being a businessman, हमें consumer protection का ध्यान रखना ही चाहिए. Any questions to anybody regarding the importance of consumer protection for the consumer and importance of consumer protection for the business? किसी को query, कोई doubt हो तो बोलिए. सर बोलिए, सुन रहा हूँ. सर इसमें हमारे 6 पॉइंट्स हैं. तो कोई बात नहीं, आप 6 पॉइंट रिपीट कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतने टेंशन क्या लेने. सर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सर, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज. वाह, ये तो लेटेस्ट पॉइंट आ गया. नींद में बैठोगे तुम? ये सर ने बता दिया ना. पढ़ो पॉइंट नंबर, स्क्रीन पे देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है. सर वो भी है, पर सर एक्स्ट्रा भी है इसमें. वाह, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है. वो अलग पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है चिराग. लीव इट. लेट अस मूव फर्दर. अब हम डिटेल पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में. इतना तो आप लोग इतने 2 सालों में समझ चुके होंगे. जब भी किसी एक्ट को हम पढ़ते हैं, जब भी किसी लॉ को हम पढ़ते हैं, तो उसके साथ में ईयर ऑफ एनेक्टमेंट हमेशा अटैच्ड होता है. लाइक द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द कंपनीज एक्ट, कौन सा है कंपनीज एक्ट? 2013. पता है. The Companies Act 2013. Similarly, Consumer Protection Act 1986. This act was enacted in 1986. The meaning of a consumer, as per Consumer Protection Act, लिखा है यहाँ पे मीनिंग. ठीक है, ध्यान से इसको आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था. अगर एग्जामिनेशन में आपके पास में आता है that what do you mean by consumer as per Consumer Protection Act, और अगर वहां पे आप लिख के आ जाते हो that consumer is a person who consumes a product for final satisfaction of his wants, तो आपको पूरा 0 मार्क्स मिलेंगे, आधे भी नहीं, है ना. तो आपको डेफिनेशन समझनी है. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ
and as I told you, in the 2 paragraph definition have been given for the consumer protection for a consumer, not consumer protection, for a consumer 2 paragraph definition is given under the Consumer Protection Act. ठीक है, तो ये 2 definitions क्यों है, पहले ये भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा. जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो गुड्स के बारे में है, वर्ड दिख रहा है आपको, गुड्स. और जो सेकंड डेफिनेशन है वो सर्विसेज के बारे में है. अब इतना तो आपको क्लियर सबको होगा ही दैट कंज्यूमर गुड्स भी कंज्यूम करता है और सर्विसेज भी कंज्यूम करता है. एनी पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स also known as consumer, any person who consumes services also known as consumer. तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ की डेफिनेशन इसी पर्पस से बनाई गई है, दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ इज फॉर द गुड्स एंड द सेकंड पैराग्राफ इज फॉर द सर्विसेज. देखिए क्या लिखा है. Consumer Protection Act 1986 was introduced to make consumers aware about their rights and to give them legal protection. According to it, consumer is defined as follows: any person who buys any goods for a consideration. एक एक वर्ड को concentration से ध्यान देके आपको समझना है. Any person, ठीक है. तो सबसे पहली बात यहाँ पे पर्सन की हो रही है, दैट इज एक इंडिविजुअल की बात हो रही है. और खैर पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी आ सकता है, बट यहाँ पे नेचुरल पर्सन की बात आ रही है. एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन. क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसके लिए आपने कुछ ना कुछ पे किया होना चाहिए. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नहीं होना चाहिए. सो एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स. अब बात ये आती है, क्या सिर्फ उसे खरीदने वाला ही उसमें इंक्लूड होगा? कैसे ये चीज आपको क्लियरिफाई होगी? सपोज कीजिए आपके पापा बाजार से जाके एक कोई प्रोडक्ट खरीद के लिए, सपोज चेयर खरीद के लेके आए बाजार से. ठीक है, आपके पापा बाजार जाके एक चेयर परचेज करके लेके आए और घर में लाके उस चेयर को रखी. आप उस चेयर पे बैठे और आपको चोट लग गई. वो चेयर अचानक से बैठती टूट गई और आपको चोट लग गई. तो अब बताइए, क्या आपने उस चेयर को खरीदा था? नहीं. तो यू आर नॉट अ बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्या आपने उसके लिए कंसिडरेशन पे किया था? नहीं. तो यू आर नॉट, यू डिडंट पे एनी मनी कंसिडरेशन फॉर इट. तो इसका मतलब तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. आगे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स any user of such goods with the approval of the buyer. तो obviously आपके पापा ने प्रोडक्ट खरीदा तो उनका अप्रूवल आपके लिए तो है ही. तो उनके अप्रूवल से जब आप उसको प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आप भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं. आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से. बट इट डज नॉट इंक्लूड, अब देखिए बहुत अच्छी बात आ गई यहाँ पे कि उसमें इंक्लूड क्या नहीं करना है, उसे भी हमें ध्यान रखना है. बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पसेज. यानी कि मान लीजिए मेरा टेक्सटाइल मिल है, मैं कपड़ा बनाता हूं, टेक्सटाइल मिल है, वहां टेक्सटाइल मिल में मैंने एक मशीनरी परचेज की है, तो मैं कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने मशीनरी परचेज की है ये कौन से पर्पज से परचेज की? मैंने कमर्शियल पर्पज से परचेज की. समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरी बात, अगर मैं स्टेशनरी बिजनेस रन करता हूं, लाइक गांधी स्टेशनर्स, और मैंने बुक्स वगैरह परचेज की, कोई भी अदर आर्टिकल मैंने परचेज किए रीसेल पर्पज के, स्टेशनरी मटेरियल रीसेल पर्पज के लिए अगर मैंने परचेज किया है तो, और उससे मुझे अगर कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है, लॉस होता है, कुछ भी, तो भी मैं कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आऊंगा. कंज्यूमर के डेफिनेशन में कौन आएगा? एनी पर्सन हु बाइज अ गुड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर है. विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर अगर आप कर देंगे तो भी आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर एज पर द गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड डेफिनेशन देखिए, एनी पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. फिर से वही वर्ड बातें आई हैं. सबसे पहला वर्ड तो क्या लिखा है यहाँ पे? इसने लिखा है दैट इज अवेल्स द सर्विसेज, और वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. दैट सर्विसेज शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन. इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज बट इट डज नॉट इंक्लूड. तो उस सर्विसेज को अवेल करने के साथ साथ उसका अदर कोई बेनिफिशियरी है सर्विसेज का, वो भी उसमें इंक्लूडेड है. लेकिन उसमें इंक्लूडेड क्या नहीं है? इट डज नॉट इंक्लूड, क्या है, जस्ट होल्ड कीजिए एक सेकंड के लिए जी. बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेज. अगर कमर्शियल पर्पसेज के लिए हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर एज एन एम्प्लॉय वर्क करता है,
तो वो सर्विसेज कौन सी हो गई, वो कमर्शियल सर्विसेज हो गई, तो फिर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर आपने अपने खुद के लिए सर्विस अवेल की हैं तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। आई होप सबको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आई होंगी। जिसको भी ज़रूरत है स्क्रीनशॉट्स लेते रहना समय समय पर, और बुक में भी ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी तो उसमें से पढ़ते रहना। अब बात आती है मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर का मीनिंग तो हमने समझ लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग समझा जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन आल्सो एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय रिकॉग्नाइजिंग कंज्यूमर्स राइट्स। तो आपको जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट करने हैं, है ना, वो किस दायरे में आपको प्रोटेक्ट करने हैं, किस स्कोप में, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करने हैं, क्या उसका लिमिट होगा। सो दैट द लिमिट विल बी बाय रिकॉग्नाइजिंग द कंज्यूमर्स राइट्स। जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि वो राइट्स कभी भी वायलेट नहीं होने चाहिए, ये हम ध्यान रखेंगे तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाएगा। such as right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. These are the 6 consumer rights provided by the Consumer Protection Act to each and every consumer. And who is a consumer? We just discussed few seconds back. Now, the second point which defines the consumer protection is to provide for a simple, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। 3 वर्ड्स आए हैं, तीनों वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। पहला वर्ड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स किसके लिए यूज किए हमने? क्या चीज सिंपल होनी चाहिए, क्या स्पीडी मैनर में होना चाहिए, क्या सस्ता होना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री में एक चीज है जो फास्टेस्ट स्पीड से मिलता है, न्याय। आई एम जस्ट टेलिंग इट सरकास्टिकली। in our country the legal system is so much slow कि अगर आज आप कोर्ट में एक केस जाके करते हो वो मिनिमम 20 to 25 इयर्स तक चलेगा। इतना इनफेक्टिव, इतना यू कैन से लूज लीगल सिस्टम हमारे यहाँ पे है। और ऑब्वियसली 20 साल तक चलेगा तो खर्चा तो होना ही है, तो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी है, विदाउट एडवोकेट यू कैन नॉट एंटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो सिंपल भी नहीं रहा वो, है ना। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? इट द रिड्रेसल ऑफ अ कंज्यूमर ग्रीवियंस, द रिड्रेसल ऑफ अ कंज्यूमर ग्रीवियंस शुड बी सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। सिंपल का मतलब विदाउट द एडवोकेट you can approach to the consumer protection forum. The speed is so much that each and every case must be heard and to be finally decided within 90 days period. And inexpensive, you need not to fill any court fees. Court fees act does not apply to the consumer cases. तो ये सारे बातें आती है that the consumer redressal grievance सिस्टम शुड बी सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। ये आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। और उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू? द एक्ट हैज प्रोवाइडेड द 3-tier रिड्रेसल एजेंसी। द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3-tier एनफोर्समेंट मशीनरी, 3-tier रिड्रेसल एजेंसी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज प्रोवाइडेड to safeguard the interests of the consumers. Any questions, any queries to anyone till here? राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।